Have a nice day, student. Today we discuss or continue the chapter Why do we fall ill? Why do we fall ill? In this chapter, we discuss about the diseases. So, in the last class, we have discussed about the disease. What is the disease? What is the meaning of disease? Today, we discuss about the types of diseases. In our body, the diseases are divided or diseases are entered through the pathogens. So diseases classified in two groups. The first group we call them congenital disease. Congenital, it means the disease which transfer from parents to offspring. We call them congenital disease. For example, hemophilia. Hemophilia is a congenital disease. In this disease, the disease transfer from parents to their offspring. In this disease, male suffer from the disease. It means male will be diseased person. It means मेल के अंदर ये डिजीज appear होगी या डिजीज होगी. So male are the diseased persons or male will be the diseased person. In the case of female, females are only carrier here. Females only carry the disease. They carry the disease from one generation to another generation. So normally the male young ones or male child will suffer from this disease and females are only carrier in this disease. The second type of this disease, we call it the acquired disease. Acquired, it means such type of disease we got from our surrounding. So these diseases are called the acquired disease, or these acquired disease divided in two types on the basis of their transmission. अगर disease transfer हो जाती है किसी disease person से healthy person में, तो हम इसे बोल देंगे infectious disease. और अगर मान लीजिए डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है तो उस केस में हम इस डिजीज को बोल देंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मीनिंग सिंपल सा है. इन्फेक्शियस इट मीन्स कम्युनिकेबल. द डिजीज विच कम्युनिकेट विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, so we call them communicable. One person, it means disease person. A disease which present in a person, or if it transfer from diseased person to healthy person, such type of disease is known as communicable. अगर हम बात करते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है कि द डिजीज कैन नॉट ट्रांसफर और डिजीज will not transfer from diseased person to a healthy person. So such diseases are called the non-communicable. For example, degenerative disease. The degenerative disease, it means the disease in which the body organs cannot perform the normal function. We call them degenerative diseases. Just like heart failure, kidney failure, all the disease we call them degenerative diseases. अगर मान लीजिए किसी आदमी के हार्ट या लीवर या किडनी काम करना बंद कर देता है या प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? डिजेनरेटिव डिजीज. इसमें हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है पर्सन को, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है उस पर्सन के अंदर, एंड हो सकता है उस पर्सन के लीवर में प्रॉब्लम. इस तरह की जो डिजीजेस होती है उन्हें हम बोलते हैं डिजेनरेटिव. दूसरा ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो वो है डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी इट मींस पर्सन हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट. इसमें कौन सी डिजीज होगी? ऑब्वियसली इसमें जो डिजीज होगी उसमें डेफिशिएंसी होगी. किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है वो चीज हम डिस्कस कर सकते हैं. डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन की. विटामिन्स और विटामिन्स एवरीबॉडी वेल नोन. विटामिन्स को अगर हम रिकग्नाइज करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो ये सारे विटामिन से. अगर ये विटामिन किसी भी पर्सन की बैलेंस डाइट में कम है तो इससे जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी. सेम केस मिनरल के साथ भी होता है कि मिनरल्स अगर प्रॉपरली डाइट में नहीं है तो उस पर्सन में जो डिजीज होगी उसे हम बोलेंगे मिनरल डेफिशिएंसी. हो सकता है उस पर्सन की डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, तो इस तरह के केस में उस पर्सन के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है और इस तरह के डिजीज को हम बोलते हैं
प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो ये कुछ डिजीजेज है जिसे हम बोल सकते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल। ऑब्वियसली है कि किसी पर्सन को अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी दूसरे पर्सन में कभी भी ट्रांसफर नहीं हो। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिजीज एलर्जी की, कि एलर्जी भी एक नॉन कम्युनिकेबल है। एलर्जी इट मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी। एलर्जी इट मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग बीइंग अगर किसी पर्टिकुलर केमिकल, पर्टिकुलर पार्टिकल्स, पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन्स, पर्टिकुलर प्रोटीन्स के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है उस पर्टिकुलर केमिकल्स और प्रोटीन्स की तरफ, तो वी कॉल देम हाइपर सेंसिटिविटी एट। एक और डिजीज है कैंसर। कैंसर भी कभी भी किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। रीजन सिंपल सा है कि कैंसर इट मीन्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का मीनिंग यहाँ पर है कि सेल के अंदर जो डिवीजन की जो रेगुलेशन है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सेल अनकंट्रोल्ड डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है। तो जो कैंसर कोज होता है उसके पीछे जो बेसिक रीजन है दैट इज नॉन एज द ऑन्कोजीन्स। ये ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजन। इन कार्सिनोजन की वजह से ऑन्कोजीन्स एक बार अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो पर्सन में कैंसर हो जाता है। और ये कार्सिनोजेंस, इन कार्सिनोजेंस की वजह से ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट होते हैं और उससे सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो सच डिजीज इज नॉन एज ए कैंसर और वी कॉल देम dreadful disease also. At a high, at a advanced level, it become more dangerous. In this chapter, if we discuss about the infectious disease, so in the case of infectious disease, obviously infectious disease are caused by the some pathogens, and non-infectious disease we have discussed already. So if we talk about the only infectious and non-infectious disease, so we can categorize in two groups. That is the infectious disease. If we discuss about here infectious disease examples and non-infectious disease example. We have already discussed about the infectious and non-infectious. So बहुत सारी diseases जो infectious होती हैं, very simple सी disease common cold, it goes by virus, malaria, it goes by protozoa, polio, leprosy. Leprosy is the contagious disease. कंटीजियस का मतलब होता है ये डिजीज टच से भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। एड्स, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस इट मीन द डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय थ्रू एनी मीन, थ्रू एनी मीडिया। नॉन इन्फेक्शियस इट मीन द डिजीज कैन नॉट ट्रांसफर। एग्जाम्पल डायबिटीज। डायबिटीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। कैंसर कभी नहीं ट्रांसफर होगी। अगर कोई डिजीज पर्सन इसको कैंसर है तो कैंसर कभी भी एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर नहीं होगा फ्रॉम अ डिजीज पर्सन। इसी तरह से अस्थमा, अस्थमा के अंदर भी कभी यह डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में। सेम केस स्कर्वी, स्कर्वी के केस में भी ये चीज होती है। स्कर्वी एक विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि कभी भी एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की। अब इसमें कुछ दो तीन चीजें और जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो है इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन इट मीन्स the reaction which is caused or reaction which is developed after the infection of pathogen in our body, we call it inflammation. The reaction of body or the uh, activeness of body, whenever the body become activated against any infection, we call them inflammations. Inflammation is the accumulation of lymph in the affected body parts or activeness of immune system, we call them inflammation. Another important disease, we call it the peptic ulcer. Peptic ulcer is the disease which is caused by the bacteria. Earlier, the scientists knew about this disease. This disease is caused due to the HCl, but it was not true. Peptic ulcer एक डिजीज है जो कि स्टमक के अंदर होती है। स्टमक के अंदर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और इन ब्लिस्टर्स को हम बोलते हैं पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर के पीछे जो कोज है, जो रीजन है, वो है एक बैक्टीरिया और उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई।
ये बैक्टीरिया स्टमक की जो वॉल है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको डैमेज कर देता है और उसकी वजह से ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाते हैं एंड दिस ब्लिस्टर्स आर नॉन एज द पैप्टिक अल्सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।